فرمایا, ہمارے اور آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد جاتا ہے نماز کے ارادے سے, تو اللہ تعالیٰ چلنے پر اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا احرام باندھ کر حج کو جانے والے کو ثواب ملتا ہے. اور حج پر جانے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے ہی حاجی گھر سے ارادہ کر کے نکلتا ہے, اس کے ثواب کا میٹر گھومنا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہنچنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک لوٹا پانی کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم گھر سے بھی وضو بنا کر کے آ سکتے ہیں. اگر ثواب ہمارے ذہن کے اندر ہو, احرام باندھ کر حج کو جانے والے کا ثواب گھر سے وضو کر کے مسجد آنے والوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے, ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک نیکی ملتی ہے, اس کے نامۂ اعمال میں لکھی جاتی ہے. اور دوسرا قدم جب زمین پر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال سے ایک گناہ کو مٹاتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں, ہم اور آپ اور وہ تمام حضرات خوش نصیب ہیں جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتے ہیں, یا کم سے کم مسجد ہی کے اندر وضو کر کے مسجد کے اندر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں ثواب دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے پوچھا کہ میرے محبوب, کون سے اعمال ایسے ہیں جن کے افضلیت کے بارے میں فرشتے بحث کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, اے اللہ, ان اعمال کے بارے میں فرشتے بحث کر رہے ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں, یعنی ان کے کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. گناہ مٹانے کے لیے 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ نہیں کرتے, نہیں کرنا پڑتا. آپ چھوٹا سا کام کیجیے, اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے. اللہ کے رسول سے اللہ رب العزت نے پوچھا, میرے محبوب بتاؤ کون کون اعمال ہیں جن کے کرنے سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ اعمال گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے؟ اول نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی پیدل گھر سے مسجد کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کی وجہ سے گناہ کو مٹا دیتا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 2 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے اور سنت پڑھنے کے بعد فرض کے انتظار میں رہتا ہے, یا ایک فرض پڑھنے کے بعد دوسرے فرض کے انتظار میں رہتا ہے, تو جب تک انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کچھ پڑھتا نہیں ہے, اس کا نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی ثواب کے میٹر کو چلاتا رہتا ہے اور اس کے گناہ بیٹھنے کی وجہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ آدمی جو فجر کی نماز پڑھ کے اشراق کی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جو عصر کی نماز پڑھ کے تسبیح کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. یہ لوگ خوش نصیب ہیں. اور جو لوگ ایک فرض پڑھ کے دوسرے فرض کے انتظار میں رہتے ہیں وہ تو مسجد کے کوٹے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ مسجد کے کوٹے ہیں, کوٹے جیسے گھروں کے پیلر ہیں, مسجدوں کے کھمبے ہیں, وہ مسجدوں کے کھمبے. اللہ کے رسول نے تیسری بات فرمائی, ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اور کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اور بہت ساری چیزیں ہیں, جس میں سے 3 اور چیزوں کو اللہ کے رسول نے بتایا. اللہ کے رسول نے بتایا وہ بات جو ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نرم بات کسی سے کرنا یہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آج دیکھیے ہماری زبان تو اتنی تیز ہے جتنی تیز ٹیلر کی کیسی کھینچی نہیں ہوتی ہے, جو زبان پر آیا بولتے چلے گئے. نرم بات کرنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آج نرم بات تو بالکل معاشرے سے ختم ہو گئی. کوئی کسی سے نرم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سوائے اس کے کہ بس دیکھو ہم تم سے کم نہیں. جھکنا بھی معاف کرنا بھی بہت بڑی عبادت اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے میں 200 گرام چاول خرچ ہوتا ہے, 200 گرام آٹا خرچ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے, بھوکوں کو
भूखों को, दोस्त यार को नहीं, भूखों को खाना खिलाता है, मोहताजों को, जरूरतमंदों को, तारीफ के लिए नहीं, अल्लाह के वास्ते अगर कोई किसी को खाना खिलाता है तो अल्लाह ताला खाना खिलाने पर भी गुनाह को मिटा देते हैं। और पांचवी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया, है अल्लाह ये बात भी गुनाहों को मिटाता है कि जब दुनिया सो रही होती है, मोहल्ले के लोग सो रहे होते हैं, घर के लोग सो रहे होते हैं, शहर पूरा सोया रहता है, पूरी दुनिया सोई रहती है, उस वक्त में अगर कोई आदमी उठकर नमाज पढ़ता है तो ये भी गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली बात जो हमें गौर करने की है बुजुर्गों और दोस्तों, पैदल चल कर के आदमी अगर मस्जिद जाता है तो ये गुनाहों का मीटर जो है फिरना शुरू हो जाता है। जब तक आदमी काम करता है तब तक सारे गुनाह धुल जाते हैं। अगर बात ऐसे नहीं समझ में आई तो एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं मैं, और ये उस जमाने की मिसाल है जिस जमाने के अंदर ये लाइट वाइट का इंतजाम नहीं था, लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे। हमने भी अंधेरे में जिंदगी गुजारी है, हमने तो अब आज लाइट में आंखें खोली है, अंधेरे में हमने भी जिंदगी गुजारी है। गांव पूरा सन्नाटा रहता था, मगरिब के बाद लगता था कि पूरी रात 12 बज रहा है मगरिब के बाद। अभी तो अल्लाह का शुक्र है 2 भी बजता रहता था, लोग चलते रहते, उनको लगता है कि अभी शाम हो रही है। ये तो अल्लाह का शुक्र है। ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में अंधेरा ही अंधेरा था, लाइट और रोशनी का इंतजाम नहीं था। एक आदमी अपने घर से रात को उठकर मस्जिद के इरादे से चलते चलते रास्ते में आया, ठोकर लगी, गिरा, कपड़े गंदे हो गए। अब कपड़े गंदे लेकर के मस्जिद में तो हम जा नहीं सकते, बेचारा वापिस घर को चला गया। घर जाने के बाद दोबारा नया कपड़ा पहन करके फिर मस्जिद आने लगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं जो अल्लाह के रास्ते में ठोकर खाता है, अल्लाह के लिए ठोकर खाता है, अल्लाह ताला उसको सुरखुरू फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है, घर छोड़कर बाहर निकला हुआ है, जब तक वो लौटता नहीं है तब तक वो अल्लाह के रास्ते में है। अगर वो गर्दो गुबार उसके पाँव में या हाथ में या चेहरे पर लगता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसको जहन्नम की आग तो दूर की बात है, जहन्नम का धुआं तक भी नहीं छू सकता है। कितनी बड़ी फजीलत है अल्लाह के लिए कोई काम करने। आदमी वापस गया, नया कपड़ा चेंज किया, बदला, फिर मस्जिद आया, थोड़ी दूर चलने के बाद फिर ठोकर लगे, अंधेरा था, कुछ पता नहीं चला, फिर ठोकर लगे, फिर घर गया, वापस हुआ, फिर कपड़ा बदला। अब जब तीसरी मर्तबा हिम्मत नहीं हारा, आज हम लोगों को अगर मस्जिद आने में तकलीफ हो ना तो जिंदगी भर मस्जिद छोड़ देते, बोले बड़ी तकलीफ होती है, नाला बना हुआ है, गिरने का डर है, या और कोई बहाना लोग बना लेते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, जिनके दिल और दिमाग के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती है, उसके पास कुछ बहाने नहीं है। तीसरी मर्तबा जब कपड़ा बदल के घर से निकल रहा था तो देखा कि उसके गेट के बाहर कोई आदमी चराग लेकर खड़ा हुआ है, चराग लेकर के खड़ा हुआ है। इसको ताज्जुब हुआ कि ये कौन आदमी है। खैर इसने कुछ पूछा नहीं, चुपचाप ये आगे आगे और चराग वाला पीछे पीछे अपना आता रहा। मस्जिद के अंदर वो आदमी आ गया, जो चराग लेकर के साथ में आ रहा था वो मस्जिद के गेट पर ही खड़ा रह गया, वो अंदर नहीं आया। अब ये मस्जिद के अंदर आने के तक वो इंतजार करता रहा, मस्जिद में आया, नमाज वगैरह पढ़ी, और फिर जब वो घर जाने लगा तो फिर वो चराग वाला जो उसके घर से साथ आया था वो फिर उसको घर तक पहुंचा दिया, उसके पीछे पीछे घर तक उसके पहुंचा दिया। वो आदमी जब अपने घर के अंदर दाखिल होने लगा तो रुक करके कहा कि भाई एक बात बताओ, 2 मर्तबा तो हम अंधेरे में गए थे, 2 बार ठोकर लगी थी, 2 बार वापिस आए थे, तीसरी बार में तुम कौन हो जो चराग का इंतजाम मेरे लिए किए हो? तुम्हारा बहुत बहुत एहसान शुक्रिया। तो उसने कहा कि एहसान भी मानने की जरूरत नहीं है और शुक्रिया भी अदा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मोहल्ले का इंसान
इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं शैतान हूँ, मैं तुमको रोशनी दिखाने के लिए लाया था। उस आदमी ने कहा कि भाई कोई शैतान तो इतना रहबरी नहीं करता है कि अंधेरे में रहने वाले को रोशनी दिखाता हो, बल्कि शैतान का काम तो ये है कि अगर कोई रोशनी में हो, कोई मस्जिद को आना हो तो मस्जिद से घुमा के उसको वापस कर दे। आजकल मार्केट में हो रहा है, लोग घर में बोल के जाते हैं कि जा रहे नमाज पढ़ने और सीधे उधर चले जाते हैं। घर वाले समझते हैं कि ये गया नमाज पढ़ने और ये सीधे उधर चले जाते हैं, नमाज खत्म हो गई फिर घर को चले आते। तो मार्केट में तो ये हो रहा, उसने कहा कि शैतान का काम तो ये है कि अंधेरे में से रोशनी नहीं बल्कि रोशनी में रहने वाले को अंधेरा में ले जाना। और आपका एहसान किस बात पर? कहा कि देखो मैं एक शैतान हूँ और मैंने तुम्हारे साथ इसलिए किया है कि जब तुम पहली मर्तबा अंधेरे में घर से मस्जिद के लिए निकले थे, तुम्हें ठोकर लगी थी, ठोकर लगने की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह को माफ कर दिया। जब दूसरी बार तुम कपड़ा बदल के जा रहे थे और तुम्हें रास्ते के अंदर ठोकर लगी, तो अल्लाह ने तुम्हारे ठोकर लगने की वजह से तुम्हारे मोहल्ले और शहर वाले सारे लोगों के गुनाह को माफ कर दिया। और मैंने सोचा कि अगर तीसरी बार इसको ठोकर लगेगी तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत हो जाएगी, इसलिए मैंने बचाने के लिए ताकि तुमको न ठोकर लगे और न पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत हो, मैं मग़फ़िरत से रोकने के लिए मैंने तुम्हें रोशनी दी। बुजुर्गों और दोस्तों, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरी चीज ये है कि सर्दी के मौसम में नागवारी के बावजूद, सर्दी के मौसम में आमतौर से लोगों को पानी छूने से एलर्जी होती है। आम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदों में भी और आम तौर से आम मस्जिदों में गीजर वगैरह का इंतजाम है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। ठंडी लगे ठंडी से मर जाए चलता है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तीसरी चीज ये है, सर्दी के मौसम में नागवारी के बावजूद दिल न चाहता हो पानी छूने का, फिर भी पानी हम छू रहे हैं, पानी छूने की वजह से अल्लाह ताला गुनाह को माफ कर देता है। पूरा वुज़ू करना तो दूर की बात है। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, अल्लाह ताला खबरदार कर रहा है, क्या इंसान ये समझता है कि मैंने इसको सांड की तरह आजाद छोड़ दिया है, जानवरों की तरह आजाद छोड़ दिया है कि जैसे जानवर जिंदगी गुजार रहे हो, एक इंसान जो मुकल्लफ है वो भी अपनी जिंदगी आजाद रखता? नहीं, हमने आजाद नहीं छोड़ा है, मैंने इनको मुकल्लफ बनाया है। हुक्म का भी हुक्म ना करने पर सजा देने का मुकल्लफ बनाया है और हुक्म को पूरा करने पर सवाब देने का मुकल्लफ है। हम आजाद नहीं है बुजुर्गों और दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझनी पड़ेगी। अल्लाह ताला हमें सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत पढ़े।